سندھ میں درسی کتابوں کی چھپائی بروقت نہ ہونے کے باعث نیا تعلیمی سال تاخیر سے شروع ہوگا۔ محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے نیا تعلیمی سال اگست میں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ میں درسی کتابوں کی چھپائی میں تاخیر۔ سندھ میں نیا تعلیمی سال اپریل کی بجائے اگست سے شروع ہوگا۔ محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے بھی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پبلشرز اور محکمہ تعلیم میں تنازع کی وجہ سے کتابوں کی چھپائی شروع نہ ہو سکی۔ کتابوں کی چھپائی سے ترسیل تک کم از کم 4 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز نے محکمہ تعلیم کے افسران کو براہ راست طلب کیا۔ پبلشرز کی موجودگی میں حارث نواز نے محکمہ تعلیم کے افسران پر دباؤ ڈالا۔ محکمے کے افسران نے واپس آ کر نگراں وزیر تعلیم رانا حسین کو آگاہ کیا۔ نگراں وزیر تعلیم نے نگراں وزیر داخلہ کے اس عمل پر برہمی کا اظہار کیا اور نگراں وزیر اعلیٰ کو شکایت کر دی۔ چیئرمین پبلشرز ایسوسی ایشن کے مطابق محکمہ داخلہ میں ہونے والے اجلاس میں حکومت سندھ کو تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب اردو بازار کے دکانداروں نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے پر تحفظات کھڑے کر دیے۔ بتایا کہ اگست میں تعلیمی سال شروع ہونے سے کتابوں کی خریداری کو نقصان ہوگا۔ جب تک آپ کی گورنمنٹ کی کوئی ایک واضح پالیسی نہیں ہوگی تو پبلشر تو بیچارہ چھوٹا پبلشر ہے، اگر گورنمنٹ اس کو صحیح سے ڈکٹیٹ کرے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بک شارٹ ہو۔ بہت مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچوں کو بہت پریشانی ہوتی پڑھنے کے لیے، پھر وہ مانگ کے کتابیں بچوں میں آپس ارینج کرتے ہیں، پبلشر چھاپتے نہیں ہیں، گورنمنٹ الاؤنس نہیں کرتی ہے، جب پیپر ختم ہو جاتے ہیں پھر گورنمنٹ کی کتابیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر نیو ایئر بھی آ جاتا ہے، بہت مسئلے ہیں۔ صدر اردو بار ایسوسی ایشن ساجد یوسف نے حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی بھی اس وقت لاسٹ ایئر کا جتنا اسٹاک ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کوئی بکس ایسی نہیں ہے جو شارٹ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم پہ اس کو اگست میں لے کے جانا چاہیے اس سیشن کو، یہ سیشن اپریل میں ہی ہونا چاہیے، نہیں تو ہماری ٹریڈ کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ گزشتہ سال درسی کتب وقت پر چھپ کر مارکیٹ میں نہیں آ سکی تھیں۔ طلباء و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں کرپشن کی شکایات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر سیکرٹری ایجوکیشن کو خط لکھ دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں چند سال کے دوران کروڑوں کے گھپلوں کی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مختلف اوقات میں سندھ بک ٹیکسٹ بورڈ کے سیکرٹری اور افسران کو پیش ہونے کی ہدایات بھی کی تھی اور ریکارڈ بھی طلب کیا گیا تھا، لیکن نہ تو کوئی افسر پیش ہوا اور نہ ہی ریکارڈ فراہم کیا گیا۔ خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ انتظامیہ کو اینٹی کرپشن سے تعاون کرنے کا پابند کیا جائے، ورنہ محکمہ چھاپہ مار کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ کوئی جان بوجھ کر شہر کے جوانوں کو پیچھے کر رہا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی بھی فیل ہونے والے طلبہ کے حق میں بول پڑی۔ ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے طلبہ کو فیل کرنے کا الزام متعلقہ بورڈ کو ٹھہرا دیا۔ بولے 11ویں جماعت کے طلبہ کو جان بوجھ کر امتحانات میں فیل کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں امتحانات کے نتائج کو تعلیمی دہشت گردی قرار دے دیا۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے اہم مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائر مقبول باقر سے یہ امید نہ تھی۔ والدین کے ہمراہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا، میں توقع نہیں کر سکتا تھا جسٹس مقبول باقر صاحب سے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ انٹرمیڈیٹ میں اتنے بڑے پیمانے پر بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے اور یہ صرف کراچی بورڈ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، باقی بورڈز میں تو دوسرا ریفلیکشن ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر بچے فیل ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں، احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں، یعنی انہیں حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے۔ اگر اور علم ہے تو پھر آپ اس طرح بات کر کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے شہر کی تباہی کا ذمہ دار ایک بار پھر MQM اور پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا۔ بولے دونوں جماعتوں نے مل کر کراچی کے اداروں کو نقصان پہنچایا۔ عباسی شہید اسپتال کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ 2008 سے لے کر 13 تک، پھر اس کے بعد PDM میں MQM شریک جرم رہی ہے۔ یہ کراچی دشمنی کا اشتراک ہے کہ جس میں یہ دونوں پارٹنرز ان کرائم ہیں، پیپلز پارٹی اور MQM، جنہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا ہے، اور ابھی عباسی شہید کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اسپتال کا۔ امیر جماعت اسلامی نے عام انتخابات میں عوام سے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ہمراہ میر کیریو، کراچی۔
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर इलेक्शन की सिक्योरिटी प्लान सामने ले आए। इलेक्शन की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में 19,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के 1.5 लाख अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। आदिल जमाली की रिपोर्ट है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब। निगरान वजीर आला की जेर सदारत बड़ी बैठक। सूबे सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जेर सदारत वजीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध भी इजलास में शरीक हुए। इजलास के बाद निगरान वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतजामात मुकम्मल है। आम इंतखाबात के दौरान पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज, FC और दीगर इदारों के 1.5 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमत दी जाएंगी। हमारे यहाँ जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी वो 1,09,000 और उससे ज़्यादा तकरीबन कुछ और जवान होंगे जिनकी डिप्लॉयमेंट होगी इस हवाले से। इसके अलावा 10,000 रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है, 3,000 रेंजर्स रिज़र्व में रहेंगे, फिर जो है 14,000 आर्मी के जवान इस ड्यूटी पे रहेंगे। इसके अलावा 300 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में मावनत के लिए तैयार रहेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि सूबा सिंध के 19,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस में 6,000 से ज्यादा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब करने का काम शुरू कर दिया गया है। 19,006 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिए गए। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम किए जाएं। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से कोशां थी। तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे वीडियो कैमरास नस्ब कर दिए गए हैं। ये इंतज़ाम NRTC के हवाले किया गया है, जिसमें से 50% कैमरास नस्ब हो चुके हैं, 50% इंशाल्लाह इलेक्शन से काफ़ी कबल मौसर तरीके से नस्ब हो जाएंगे। मुख्तलिफ सवालात के जवाब में निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। पुलिस चीफ ने 80% शहर को हसास करार दे दिया। पुलिस फोर्स में कमी भी दूर, हुकूमत ने पुलिस को मजीद फोर्स देने का मुतालबा भी मान लिया है। एंटी इंक्रोचमेंट मुख्तलिफ सेल्स और इदारों से पूरा किया जाएगा। तफसीलात क्या हैं जानेंगे शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। कराची में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी, पुलिस के भरपूर इंतजामात, मजीद फोर्स देने का मुतालबा भी मंजूर। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन दरिन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर में आम इंतखाबात के लिए 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 2,000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं और हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 2,700 के करीब है। जो कराची के टोटल पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद कोई 5,500 है। रफ फिगर में आपको बता रहा हूँ, वैसे 5,336 या 76 है, और उसमें से 500 स्टेशंस को छोड़ के बाकी इधर 2,000 के लगभग जो है वो मोस्ट सेंसिटिव हैं और 2,700 कुछ सेंसिटिव हैं। खादिम हुसैन दरिन का कहना था कि मतलूबा 10,000 फोर्स में 9,000 मर्द और 1,000 खवातीन की जरूरत है। हुकूमत से 10,000 फोर्स फराहम करने का मुतालबा किया था, जिसे मान लिया गया है। मर्द फोर्स की कमी को एंटी इंक्रोचमेंट मुख्तलिफ सेल्स और इदारों से पूरा किया जाएगा, जबकि खवातीन फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की खिदमात ली जाएंगी। इस वक्त हम 10,000 की उस पर शॉर्ट फॉल पे खड़े हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक शॉर्टेज हमारी फीमेल्स की भी है। जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो हमें देंगे, उनकी हम शॉर्ट ट्रेनिंग करवाएंगे। बाकी जो डिमांड है वो कुछ हमें IG ऑफिस से मिलेगी और कुछ हमने सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करना है। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एंटी इंक्रोचमेंट हो गया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, या ऐसे जो है एक्साइज वाले हैं, वहाँ से हमें मिलेंगे। फराहम करदा अफराद पुलिस ट्रेनिंग के हामिल अफराद ना हुए तो शॉर्ट कोर्स कराएंगे। बॉडी सर्च किस तरह की जाती है, किस तरह क्यू बनाई जाती है, किस तरह निगरानी की जाती है, सिखाया जाएगा। अहम चीज खुदकुश बमबार से मुताल्लिक मालूमात हैं, जिससे इन्हें आगाह किया जाएगा। जो बाहर के लोग आते हैं उनको हमने ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ज़्यादातर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि स्टैटिक ड्यूटीज़ होंगी, लेकिन स्टैटिक ड्यूटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बॉडी सर्च होता है, किस तरह क्यू बनानी है, क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, किस तरह के लोगों पे आपको नज़र रखनी है। इवन हमारा प्लान तो ये भी है कि अगर कोई खुदकश बमबार भी होता है तो उसकी भी कुछ निशानियाँ होती हैं, किस तरह का उसका लुक होता है, किस तरह के उसने ड्रेसअप किया होता है। तो
छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोशिश करेंगे कि उनको इस तरह की सारी अवेयरनेस हो। कराची पुलिस चीफ ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तयशुदा मंसूबे के तहत इंतहाई हसास पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस पर 4 अफसरान और एहलकार तैनात करने का बताया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा शाजेब हुसैन, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर में कई सड़कों समेत सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का 100 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल भी पीपल्स पार्टी ने तामीर कराया, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्डियक केयर अस्पताल भी ज़िला कुरंगी में बनने जा रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं इस तासुर की नफ़ी करना चाहूँगा जो हमारे नाक़दीन डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मैं छोटे कामों की निशानदही नहीं करूंगा, बल्कि बड़े बड़े काम जो पिछले सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किए हैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 8,000 रोड हो, 12,000 रोड हो, 16,000 रोड हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना के दिए। फ्लाईओवर्स की बात करेंगे तो शाहजहां करीम फ्लाईओवर हो या कुरंगी 2.5 नंबर का फ्लाईओवर हो या कुरंगी 5 नंबर का फ्लाईओवर हो, ये सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी उसने बनाए। अगर अंडरपास की बात करेंगे, जो शारे फैसल से मुनव्वर सोहरावर्दी अंडरपास गुजरता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दिया। अगर हेल्थ की शोबे की बात करेंगे तो इंडस हॉस्पिटल जो कि एक मुफ्त इलाज लोगों को फराहम करता है, उसके सबसे बड़े डोनर्स में से एक सिंध हुकूमत थी। तकरीबन 2.5 अरब रुपए की ग्रांट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से इंडस हॉस्पिटल को मिलती है ताकि लोगों का मुफ्त। अब आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से जापान के काउंसल जनरल की मुलाकात जापान की कराची की तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि तरक्याती मंसूबों समेत सनदी शोबे में पाकिस्तान के लिए जापान की मदद काबिल कदर है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों फ़रीक़ैन ने मुस्तकिल में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि जापानी कंपनीज़ को कराची में सरमायाकारी पर मुकम्मल ताउन फ्राहम करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची में शहरियों को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी के लिए हर सतह पर इक़दाम कर रही है। जापानी कौंसल जनरल का कहना था कि कराची पाकिस्तान का अहम शहर है, मुल्की मईशत के मरकज़ को तरक्की देना मुस्बत अमल है। कराची समेत सूबा सिंध में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन में मज़ीद वुसअत के ख्वाहिशमंद हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने हाथ गाड़ी चलाने वालों के भी चालान शुरू कर दिए हैं और सिटी एरिया में मुतादिद अफराद को 1,000 रुपये तक के चालान कर दिए। महराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के बाद हाथ गाड़ी चलाने वालों के भी चालान शुरू कर दिए गए। डीएसपी ट्रैफिक खारादर ने बताया कि ओल्ड सिटी एरिया खारादर और मीठा दर में मुखालिफ सिम से हाथ गाड़ियों पर सामान लाद कर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। MVR MVU में क्लियर कट है कि वन वे पे ये नहीं जाएंगे। इन्हें मुतबादिल रूट हम पिछले काफ़ी अरसे से समझा रहे हैं। मेमन मस्जिद की बैक साइड का रूट है, शारा लियाकत है अंदर मार्केट से, लेकिन इन्होंने ये एक रूटीन बनाई हुई है कि वन वे पे ही जा रहे हैं। हमने पहले समझाया, मार्केट एसोसिएशन को बताया, इनके अहदेदारों को बताया, उन्होंने व्हाट्सअप मैसेज चलाए हैं, उन्होंने अपनी मस्जिदों में ऐलान कराए हैं, अपनी मार्केट्स में ऐलान कराए हैं। मज़ीद फिर इन्होंने जो शुरू किया तो हमने इनको बताया कि जी हम ये एक्शन करेंगे। उसमें हमें कोड 89 है वहाँ पर हाथ गाड़ी के। उसमें बोल्टन मार्केट और टावर के अतराफ हाथ गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस की चालान मुहिम से नाला दिखाई दिए। कहते हैं इतनी दिहाड़ी नहीं जितना चालान किया जा रहा है। ये बोले वन वे, इस यहाँ पे तो हम रोज चला जाते हैं, पहली दफा है किसने रोका है हमारे को। तो आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहे कभी नहीं हुआ, इसका चालान क्यों करवा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे किया कि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लिहाजा जो शहरी जुर्मानों से बचना चाहते हैं वो कवानीन की पासदारी करें। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। जबकि नाज़रीन कराची वालों की सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फ़रोख्त में इजाफा है। ज़िला शर्की और किमाड़ी में 1 माह से ड्रग इंस्पेक्टर गायब है। ज़िला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर की 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी। डिफेंस में करोड़ों रुपए की जाली अद्वियात बरामद हुई थी। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो मैंने उनको ये कहा कि जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ज़ाहिर है 7 नंबर जो है ना कराची से शहर के लिए एक मजाक है। ठीक है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ज़ीरो, सपोर्ट सिस्टम ज़ीरो, लोगों की तादाद 7, और हम समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे।
नहीं होगा, हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा। सिस्टम्स ठीक नहीं है, उनको बेहतर करने के लिए अब जो भी ज़ाहिर है हुकूमत आएगी उसको मेरे हिसाब से प्रायोरिटी करके अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बट सिस्टम्स को ठीक किए बगैर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर मादनियात सिंध खुदा बख्श मरी कहते हैं कि मुल्क में हर किस्म की मादनियात मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए कभी कोशिश नहीं की गई। इनकी बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। अजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। मादनियात सिंध ने मईशत की तरक्की का रास्ता दिखा दिया। निगरान सूबाई वजीर मुख्तलिफ इकसाम की मादनियात बर्नियों में भरकर कराची प्रेस क्लब ले आए। कुरान पाक पर हल्फ उठाया कि मुल्की तरक्की की खातिर मादनियात को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और समझ जाएं, किसी से कोई तकाजा ना करें, कोई तकाजा ना करें कि भाई हमें जॉब भी नहीं चाहिए, हमें रोड भी नहीं चाहिए, हमें सड़कें स्कूल नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा मिनरल है उसको यूटिलाइज करें, उसका जो भी % हमारा बनता है वो हम पे लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। खुदा बख्श मरी बोले कि पाकिस्तानी मईशत को सिर्फ मादनियात की बदौलत तरक्की मिल सकती है। लोहे और तांबे समेत गाड़ियों और मोबाइल फोन बनाने वाली तमाम मादनियात सिंध में मौजूद हैं। आप अगर इंडस्ट्रीज 300 इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में लगा लें मिसाल के तौर पे, और आप ज्यादा जॉब ना लगाएं, सिर्फ 6000 मल्टीप्लाई 300, एक तो वैकेंसी आपकी कितनी जॉब्स, लोगों को रोजगार कितना मिल गया, नंबर 1। उसके बाद यही सरिया आपको अपने मुल्क में 1,20,000 पे टन मिलेगा, जो 2,60,000 पे टन है बदकिस्मती से। सूबाई वजीर ने मादनियात का रॉ मटीरियल फरोख करने के बजाय मुल्क में फैक्ट्रियां लगाने का मशवरा दिया। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, CT21। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में पुलिस एहलकारों की बलोच पुल पर सुजुकी में डकैती केस की समाअत हुई। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस एहलकार क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों के साथ डकैती में मुलविस निकले। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने बलोच पुल पर सुजुकी में डकैती के मुकदमे का अबूरी चालान ही हतमी चालान के तौर पर मंजूर कर लिया। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को इश्तेहारी करार देने के लिए भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चालान के मुताबिक मुकदमे के चश्मदीद गवाह लोडर उबैद ने पुलिस एहलकारों को शनाख्त कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने चालान में बताया कि डकैती में 6 अफराद मुलविस थे। 3 पुलिस एहलकारों और 2 सादा लिबास अफराद ने तेल के 110 कार्टन से भरी सुजुकी रोकी। पुलिस वालों ने लोडर उबैद को गाड़ी से उतारा और ड्राइवर को बिठाकर गाड़ी ले गए। चालान में बताया गया कि ड्राइवर इमरान ने पहले मजलूम बनने की कोशिश की। CDR कराया गया तो ड्राइवर भी पुलिस वालों का साथ ही निकला। मुकदमे में 4 अफराद गिरफ्तार जबकि 2 मफरूर हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में गालिब और नवीद पुलिस एहलकार शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में नादिर सुल्तान पर पहले से ही कई मुकदमात का अंदराज है। तमाम तर तफ्तीश के बाद मुल्जिमान पर जुर्म साबित होता है। मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। महकमे दाखिला सिंध ने लापता अफराद के अहल खाना को सरकार की जानिब से मुआवजा देना बंद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सरकार को लापता शख्स की अदालत में पेशी तक अहल खाना को मुआवजे की रकम अदायगी का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू लापता अफराद के अहले खाना को हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। महकमा ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया गया कि लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा की अदायगी बंद कर दी गई है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान महकमा दाखिला सिंध के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह किया। फोकल पर्सन ने बताया कि मुआवजे की अदायगी के मामले पर कुछ लोगों को एतराज था, इसलिए बंद कर दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों को एतराज है इनको पैसे देना बंद कर दें। जिन लापता अफराद के अहले खाना सरकार से मुआवजा लेना चाहते हैं इनको मिलना चाहिए। अदालत ने हिदायत की कि जब तक लापता शख्स किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता सरकार अहले खाना को मुआवजे की रकम अदा करती रहे। अदालत ने 2015 से लापता शहरी माजिद का सुराग लगाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इश्तहारत शाया करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्क के जेल हुकाम और दीगर मकामात से भी लापता अफराद की मालूमात लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से 28 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मनशियात के नशे से निजात का अज़्म। महकमा समाजी बहबूद सिंध ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को इंसदाद मनशियात बहाली मरकज़ के लिए 2 इमारतें सपुर्द कर दी। निगरान वज़ीर सेहत, समाजी बहबूद, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दही तरक्की सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ की सरपरस्ती में मुआहदे की तकरीब मुनक्किद हुई।
महकमे समाजी बहबूद सिंध और ANF के माबैन 2 साला मुआहदे पर सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो और ब्रिगेडियर उमर फारूक ने दस्तखत किए। तकरीब से गुफ्तगू में निगरां वज़ीर सिंध डॉक्टर सा खालिद न्याज़ ने कहा कि मुआशरे में मनशिया की लानत बढ़ती जा रही है और महकमे समाजी बहबूद सूबे में मनशिया की लानत से निपटने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। बात करें कराची के मौसम की तो महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश की नवी सुना दी। बारिश बरसाने वाले बादल आज पाकिस्तान का रुख करेंगे। महकमे मौसमियात ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। 28 जनवरी से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। बलाई सिंध में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई है, जबकि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 67 पैसे की सतह पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 8 पैसे इजाफे से 280 रुपये 94 पैसे पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इस्तेहकाम रहा और स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 279 रुपये 67 पैसे पर ही बरकरार रहा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।